Hi guys, this is Priyanka and you all are watching Organizopedia. Recently I was in Hyderabad and on my community tab I asked you a question if you want to see what all things I bought from Hyderabad, and I got yes as an answer. So in today's video I'm going to share all the things which I bought from Hyderabad, including the things which I got from IKEA and some silk sarees which I shopped from there. So let's get started. So these are all the products which I got from IKEA, which is lying right in front of me. I have not opened any of them yet. All the things are in the original packaging only because I want to shoot this video first and share my experience with you all. And one more thing, all the details about all of these products are in the description box. So if you like, you can check description box for the same, including their prices. And so let's get started with the first product. First I got this stool which is designed for kids because it has weight constraint with it. Like it can only hold up to 18 kgs. So this is, I got two of them, both are in the white colors. And stores के अंदर में मुझे 3-4 colors और दिखे थे which were in yellow, green and blue. ऐसे ही कुछ था. अभी I don't remember exactly, but I chose white. I got two of them and इसके अंदर में I got 4 legs और इसको assemble करना भी it's very easy. और once it is assembled, it's ready to be used. So I got two of them, same in white color. Next, I got this organizer. So I'll open it now and show you. So ये ऐसा organizer है जिसमें at the back you just need to open it and there is a chain जिसको हम there is a chain at the back जिसको आपको बस थोड़ा सा pull करना है और आपका जो एक organizer है वो ready हो जाएगा. So I got 6 organizers in different sizes in one packet and I'm gonna use all these organizers inside my wardrobe. So I'll show you that also. तो next देखते हैं, मैंने परचेज किए हैं ये दो बाथ मैट्स जो कि बहुत सिली है लाना, बट मुझे बहुत इसका फैब्रिक और वो सब जो फर था एक बहुत अच्छा लगा. सो आई बॉट इट और इट क्लेम्स कि ये जो है बहुत जल्दी से जो वाटर होता है उसको ड्राई कर देता है. सो आई गॉट 2 मैट्स और व्हाइट कलर था तो मुझे और भी ज्यादा सुंदर लगा इसलिए मैं लेके आ गई. And I got these 2 canisters. तो ये एक पैक में ही है जिसमें मुझे 2 आए हैं और इसका कलर भी बहुत बहुत प्रिटी था. तो ये मैंने परचेज किया है स्पेशली टू कीप देम इन माय balcony, like I'm gonna keep plants in it. तो मुझे ये एक पैकेट में I got 2 canisters. दोनों के साइज बस डिफरेंट है. Next I got this clock and the very good thing about this clock is कि इसमें 4 different type के systems हैं जिसपे ये clock work करती है. Like एक temperature sense कर सकता है, one act as a timer, clock तो है ही and alarm clock भी है. So I'm gonna keep it on my bedside table. Next I got this white square organizer. So इसमें पीछे में एक कुछ यहाँ पर hang करने के लिए दिया हुआ है. So you can hang it somewhere and then here you can organize your stationery or you can even keep plants in it. तो ये था next purchase. So up next I got 2 more canisters और ये कुछ golden color में है. Again I'm gonna keep them in my balcony. I'm gonna keep plants in it. तो दो ये different मतलब मैंने 2 purchase करे हैं. ऐसा नहीं है कि ये set है. It's not in set. I got 2 of them from IKEA. Next, I got these spoons. So basically, मेरे बेटे ने pick करी थी ये spoons. तो इसमें क्या है कि you are getting like 3 का set है और आपको 6 different colors मिल रहे हैं. मतलब in a packet I got 18 spoons. तो सेट में there is a fork, spoon and a knife. तो ये मुझे अच्छा लगा, किसी को गिफ्ट भी देना है तो आप दे सकते हो और बहुत कलरफुल था. So I chose them. Next I got this, basically is a bookend. तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने वहां से परचेज कर लिया था. And
I'll show you. So कलर भी बहुत प्रिटी था, इसलिए मैंने इसको ले लिया. वन इज इन ब्लैक कलर एंड अदर ये कुछ पेस्टल कलर में है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था. और इस तरीके से इसको मैं रखूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी. I'll share the pictures also with you. So next, this basically is a cutlery organizer, but I got this to keep it in my working desk. Like I'm gonna organize one of the drawers in my working desk. तो ये मैंने उसके लिए परचेज किया है. अब कुछ बहुत ही क्यूट सी चीज आ रही है. ये जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, ये मुझे बहुत 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 सुंदर लगे थे. तो ये एक पैकेट में तीनों आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अलग अलग परचेज करा है. इन अ पैकेट आई गॉट 3 of them. तो I don't know how I'm gonna use them, but you can keep it in your wardrobe, hang your scarves, you can even organize your neck pieces, your earrings in them. तो मुझे बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैंने ले लिया. अभी मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मुझे इसे कैसे यूज करना है. तो नेक्स्ट मैंने परचेज किया था, this basically is a jewelry organizer. So they have given this area where you can hang your earrings, जो आपकी danglers होते हैं उनको आप hang कर सकते हैं. And over here you can hang your neck pieces. तो ये भी मुझे बहुत टाइम से लेना ही था ऑनलाइन. somehow I was not able to order it online. तो मुझे ये दिखा, so I picked it. Next I got 3 frames from there. तो ऐसे हैं ये frames. तो I got 2 of them. I got 2 of them in blue color and one is in the white color. So ये जो पेस्टल कलर था, ये समर के हिसाब से इट वॉज सो वेरी सूदिंग टू आईज. तो मैंने 3 ये वाले लिए हैं एंड इन द सेम कलर आई गॉट 2 ऑल्सो इन द स्मॉल. तो अगेन वन इज इन ब्लू कलर एंड अदर इज इन व्हाइट कलर. तो ये जो छोटे वाले हैं, इनको एक को तो मैं अपने वर्किंग डेस्क पर रखने वाली हूँ और एक को आई एम गोना कीप इट ऑन माई वैनिटी. और इन बड़े वालों के लिए मैं प्लान कर रही हूँ या तो कुछ फ्रेम, मतलब कुछ फोटोज डालेंगे, यहाँ पेंटिंग्स डालेंगे, या फिर आई एम प्लानिंग कि कुछ हैंड पेंट करके मैं यहाँ पर हैंग कर पाऊँ इन फ्रेम्स के ऊपर. सो ये था. नेक्स्ट ये मुझे बिलिंग सेक्शन के पास में दिखा. ये कुछ भी कॉमन नहीं है. दिस बेसिकली इज अ पॉलीबैग डिस्पेंसर. तो इसको बस मुझे यहाँ पर ऐसे फिक्स करना है और ये एकदम असेंबल है. आप इसको हैंग करके यूज कर सकते हैं. तो ये मैं ऑनलाइन यहाँ से कहीं से भी मिल जाता, बट इट वाज जस्ट फॉर ₹99. तो मैंने कहा ले लेती हूँ. तो ये था. नेक्स्ट I got these laundry mash bags also from IKEA. तो 3 आए हैं एक के सेट में और ये कुछ मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसको लिया था. दिस इज बेसिकली iPad stand. उनके पास में बड़ा भी था जिसमें आप इजीली आपके लैपटॉप को रख सकते हैं. देन यू कैन कीप इट ऑन द बेड एंड देन यू कैन यूज योर iPad लैपटॉप. या फिर मैं आजकल मैं अपने बेटे, माय सन, ही इज यूजिंग टू कीप हिज बुक्स एंड ही इज डूइंग हिज होमवर्क. इसको अच्छे से बेड के ऊपर रख के वो अपनी बुक्स रख के अपना होमवर्क कर लेता है. तो आई गॉट दिस स्मॉलर वन विच इज बेसिकली फॉर iPad. तो कभी कभी जब मुझे उसको वीडियोज या कुछ भी वो देख रहा होता है तो इस पे ही रख के ही कैन वॉच हिज वीडियोज ऑन iPad. तो आई गॉट दिस स्टैंड. नेक्स्ट मैंने ये कुछ प्लेट्स हैं जो कि मैंने IKEA से ही परचेज करे हैं एंड आई गेस आई गॉट लाइक 3 to 4 पैकेट्स. तो ईच पैकेट के अंदर देयर वर 6 प्लेट्स. और ये मैंने जिस दिन मुझे यहाँ पर आना था, नोएडा वापस आना था, उसके 1 या 2 दिन बाद रामनवमी थी. तो मुझे वैसे भी कन्याओं के लिए, भोजन के लिए मुझे कुछ लेना था. तो ये मुझे दिख गया एंड वो सो वेरी गुड. तो मैंने क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया. अभी मेरे पास सिर्फ 3-4 रह गए हैं, बाकी सारे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. तो ये है ऐसा. बहुत सारे डिफरेंट प्रिटी कलर्स थे, येलो, ब्लू, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स थे इसमें भी. नेक्स्ट आई गॉट दिस ऑर्गेनाइजर. तो इसको हमें सिर्फ इतना सा प्रेस करना है और ये एक ऑर्गेनाइजर जो है वो रेडी हो जाएगा. इसमें नीचे चेन लगा हुआ है. यहाँ पर इस चेन को हमें चेन करना है और जो ऑर्गेनाइजर है ये 2 मिनट में रेडी हो जाता है. तो इस ऑर्गेनाइजर को लाने के लिए मेरे लगेज में ये फिट नहीं हो रहा था. इसको बस मैं ऐसे ही पकड़ के लाई हूँ. पूरे फ्लाइट में ये ऐसे आया और इसके अंदर ही कुछ और भी पड़ा हुआ है, वो देख लेते हैं. तो ये एक और ऑर्गेनाइजर है जिसमें कि एक फ्लैप लगा हुआ है. ये फ्लैप ओपन हो जाता है और यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस है
वेयर आई कैन कीप निक आइटम्स जो भी घर में, जैसे कि कुछ नेल्स हैं या स्क्रूज हैं, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, वो बहुत इजीली इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और फ्लैप है तो बच्चे भी इसको जल्दी से ओपन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ये कुछ है। या फिर यू कैन इवन यूज इट टू ऑर्गेनाइज योर ज्वेलरी, नेक पीसेस, या फिर जो आपके इयररिंग्स होते हैं वो यहाँ पर इजिली इस तरह के बॉक्स में, जो कि फ्लैप वाला होता है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये था। एंड हियर इज वन मोर थिंग, ये भी एक क्लॉक है। तो ये क्लॉक जो है वो कुछ एल शेप में है। I'll open it and show you what this clock exactly is. So इस तरीके से ये क्लॉक है, आप देख सकते हो कि it is in the L shape. This completely is operated by batteries. यहाँ पर बैटरी का सेक्शन है, तो मैं बैटरीज डालूंगी तब ये क्लॉक यूज कर पाऊंगी। तो इस तरीके से ये है। अब इसे क्या करना है मुझे, ये आई गॉट दिस स्पेशली फॉर माई किचन। जस्ट मुझे किसी भी शेल्फ के नीचे मुझे इसे ऐसे रख देना है और जो क्लॉक है वो वहां पर बहुत इजीली आराम से फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको मुझे लगाना है किचन में। तो ये मैं किचन के लिए आई थी। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक और स्टूल लिया है, तो दिस इज दी सेकंड स्टूल अगेन इन व्हाइट कलर। तो अब जो रह गया है वो मेरा लास्ट परचेज है। सो ये सेट में नहीं है, बट इसके बिना ये यूज नहीं हो सकता है। तो मुझे ये पेपर का रोल है। तो बेसिकली इसको जब मैं असेंबल करूंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि व्हाट बोथ ऑफ देम एक्चुअली आर। तो ये अभी आई डोंट नो पिक्चर में क्लियर हो पाता है कि नहीं। दिस बेसिकली इज अ स्टैंड। इसके अंदर ये रोल डालना है और जो एक ड्राइंग शीट है वो रेडी हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू पुल इट लिटिल बिट। माय सन ही कैन स्क्रिबल ऑन द पेपर, और जब फिनिश स्क्रिबलिंग हो जाए तो उसको हम टीयर कर देंगे, देन ही कैन रोल आउट अदर पेपर एंड स्क्रिबल ऑन इट। तो ये स्टैंड है जिसे मुझे अभी असेंबल करना है, और असेंबल के बाद में ये जो पेपर का रोल है वो इसमें मैं फिट कर दूंगी। तो उसका एक ड्राइंग बोर्ड और ये जो ड्राइंग शीट है वो रेडी हो जाएगी। तो ये भी मैंने वहां से ही परचेज किया था और बहुत अफोर्डेबल है। ये सिर्फ स्टैंड आई गॉट लाइक 300-400 रुपीज का आया था, और ऐसे ही ये रोल भी था 200-300 रुपए का कुछ था। मैं प्राइस अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आई हैव टू चेक बिल फॉर दैट। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इजीली इसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या प्राइसेस हैं सारे प्रोडक्ट्स के। और एक और चीज, जब मैं शॉपिंग कर रही थी, ये सब हो गया शॉपिंग, जो कि आई नो इट्स वेरी कॉमन, आई कैन वेरी इजीली फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन नोएडा ऑल्सो, या फिर ऑनलाइन भी मिल सकता है। बट आई थॉट कि आइकिया में है तो शॉपिंग तो बनती है। तो शॉपिंग के चक्कर में मुझे एक बैग भी खरीदना पड़ा था आइकिया से, जो चेकिंग के टाइम में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, पूरा खराब हो गया है, जो कि अभी यूज नहीं हो सकता। बट ये बैग भी मुझे लेना पड़ा था। इसके अंदर इस बैग की अच्छी खासी कैपेसिटी थी, और ये बैग मुझे सिर्फ 120 या कुछ ऐसे पड़ा था ये बैग, और इसके अंदर बहुत सारा सामान आ गया था। तो ये बैग भी मैंने वहां से परचेज किया है। तो आप अभी देख सकते हो कि there are so many things around me which I got all the things from IKEA। तो ये तो था मेरा IKEA का हॉल कि मैंने वहां से क्या परचेज करा है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या साड़ी, सिल्क साड़ीज जो कि मैंने वहां से परचेज करी हैं। तो बेसिकली मैंने बहुत सारी साड़ीज परचेज करी हैं। मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स सबने मंगाई थी। तो अराउंड 30-40 साड़ीज हम लेके आए थे, जो कि अभी मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। जिसकी जिसकी साड़ीज थी मैंने उन सबको दे दी है वापस। तो अभी मैं आपको सिर्फ मेरी और जो मेरी मम्मी की साड़ीज है, सिर्फ मैं वो दिखाने वाली हूँ। वो भी कुछ 7-8 साड़ीज होंगी, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। आई ट्राई टू पुट पिक्चर्स ऑफ द साड़ी, बिकॉज इस कैमरे के थ्रू उतना जस्टिस नहीं हो पाएगा कि उनके कलर्स कैसे हैं। बट जो भी साड़ीज मैंने वहां से ली थी वो मुझे कलर्स थोड़े से उनके बहुत यूनिक लगे, जो मैं यहाँ इजिली, क्योंकि यहाँ पर इतना आपको सिल्क का वैरायटी नहीं मिल सकता है, तो वो नहीं मिला। वहाँ का जो स्पेशलिटी है पट्टू है, वो मैं वहां से बहुत सारा लेके आई हूँ। तो आई शो यू एंड आई ट्राई कि मैं उसको ड्रेप कर लूँ। उतना अच्छे से नहीं ड्रेप करूंगी, बट जैसा भी होता है जिस भी ब्लाउज के साथ में, आई शो यू, आई ड्रेप इट एंड देन आई शो यू कि कैसे वो साड़ी का गेटअप आ रहा है। तो नेक्स्ट हाफ में मैं वो दिखाऊंगी। मैं बात कम करूंगी और आप जो पिक्चर्स हैं वो ज्यादा देखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट साड़ी विच इज इन येलो एंड गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर का जो वर्क है वो इस पूरी साड़ी में ओवरऑल भरा हुआ है। आर्मी पैटर्न्स है इसमें, आर्म वाले छोटे छोटे से पैटर्न्स है। और प्लीज डोंट माइंड बिकॉज आई एम डूइंग सच मॉडलिंग काइंड ऑफ थिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो प्लीज बेयर विद मी। सो दिस इज द फर्स्ट साड़ी जो कि कांजीवरम सिल्क है।
and this is the second sari which is in orange and blue color. So जो पल्लू है that is in blue color, और इस साड़ी का जो कॉम्बिनेशन था वो मुझे बहुत यूनिक सा लगा और बहुत प्रिटी लगा, इस वजह से मैंने इसको परचेज किया था, which is very rare to find it in Noida. So this is my third sari, which is in a dark blue and golden color border, and this is basically the पट्टू, जो कि हैदराबाद का शायद स्पेशलिटी है। तो मैंने वहाँ से ये ऐसी 2 साड़ीज परचेज करी हैं, एक अपनी मम्मी के लिए भी, और ये दिस इज माय लास्ट साड़ी विच इज इन ऑरेंज एंड पिंक कलर। तो ओवरऑल जो साड़ी का कलर है विच इज पिंक एंड ऑरेंजिश, और जो पल्लू है उस पर पूरे में गोल्डन एंड ऑरेंज कलर है। इसका भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्रिटी था, सो आई पिक्ड इट। सो दीज लास्ट 2 साड़ीज आर ऑफ माई मदर। तो ये वाली जो है वो कुछ प्रॉपर ब्लैक नहीं है, ब्लूइश ब्लैक कलर है ओवरऑल साड़ी में, और गोल्डन कलर का पल्लू है। दिस इज ऑल्सो पट्टू। एंड ये वाली जो साड़ी है, मेरी मदर ने मुझे कान पकड़ के बोला था कि मेरे लिए एक गोल्डन एंड ब्लैक साड़ी लाना, तो ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, तो ये वाली साड़ी मम्मा की है। So I really hope you guys liked today's video. If so, then please do subscribe to my channel, hit that like button, and I'll see you in the next one. Till then, be organized and bye bye.